In this video, I'll discuss digital signature. That is one topic in computer security or network security. Now, what do you mean by digital signature? As in the real life, signature always provides us authentication. Authentication means that this person is really that person. Authentication के लिए use होते हैं in the real life also. So it also provides authentication in the computer security. And it must use information unique to the sender to prevent forgery. इसका क्या मतलब है कि जब हम साइन करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो सिग्नेचर में जो सिर्फ सेंडर को पता हो, अदरवाइज यहाँ पे जो हमारा रिसीवर है और सेंडर के बीच में फॉर्जरी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर यूजिंग सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में जो की है वो बोथ साइड एलिस को भी पता है और बॉब को भी पता है. जब दोनों को की सेम पता है सिमेट्रिक वाली, इन दैट केस दोनों फॉर्ज कर सकते हैं. बॉब बोल सकता है कि एलिस ने मैसेज भेजा था बिकॉज उसके सिग्नेचर एलिस और बॉब दोनों क्रिएट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे बैंक का लॉकर है, लेट्स से बैंक के लॉकर की चाबी एक बैंक के पास होती है, एक यूज़र के पास होती है, तो इन दैट केस अगर सेम की है तो यूज़र बोल सकता है कि बैंक वालों ने मेरी चीज़ें यहाँ से मिसप्लेस करी है, तो बैंक बोल सकता है कि यूज़र ने किया है. सो ऑल दोज थिंग्स उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या रखना है कि एक ऐसी की रखनी है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन रखनी है जो सिर्फ सेंडर को पता हो, और अगर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एनक्रिप्शन करी गई है देन इन दैट केस सेंडर कैन नॉट डिनाई कि ये मेरे साइन नहीं है या ये रिसीवर ने खुद सिग्नेचर क्रिएट कर लिया. सो वी मस्ट हैव समथिंग यूनिक इन दिस. सो हम इसमें कौन सी यूज़ करते हैं? असिमेट्रिक एनक्रिप्शन. नेक्स्ट इज जो रियल लाइफ के सिग्नेचर होते हैं, दैट इज सेम थ्रू आउट irrespective of the document we are signing, but in this case in security, computer security, the message will change the signature every time. If the message will change, the signature will change. That is a slight difference. Next is, it is used by third parties to resolve disputes. Whenever there is a dispute, that any misunderstanding going on or any dispute on the computer world, then third party will check the signature and signature will resolve that issue. Now we'll see with the slide diagram that how it happens. First of all, message is we apply the hash function algorithm, which I have already discussed in my previous video. Hash function algorithm we apply on the message and it will give us a small digest of this message H. Now this digest will encrypt with the private key of sender and it will create the signature. Here the important point is private key of sender, because अगर प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया गया है और वो प्राइवेट की ओनली सेंडर नोज, सो बाय दिस वे वी कैन से कि yes, these are the signatures of this particular sender. Now in this case, now the next question which comes up in your mind is कि if we are using encryption with a private key, then what is the use of encryption in here? Because anybody can take the public key of sender, because public key is available there, and decrypt that message and can check the hash. Yes, anybody can take the public key of the sender and can check the signature, but the purpose of digital signature is integrity, provides integrity, authentication, but नो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करता है. सो अगर आपको लगता है ये हमें नहीं मिलती है थ्रू डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपको लगता है कि डिजिटल सिग्नेचर लगा दिए देन माई मैसेज नोबडी कैन रीड, दैट इज़ नॉट द केस. एनीबडी कैन रीड, check your signatures. Even intruder can check the signature, but that is not our purpose. Anybody can check, but हमें रिसीवर को इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुडिएशन प्रोवाइड करना है. Non-repudiation means nobody can deny, sender cannot deny afterwards कि ये उसका मैसेज नहीं है. रिसीवर साइड पर कैसे वो चेक करेगा कि सिग्नेचर वैलिड है या नहीं? मैसेज पे will apply the same hash algorithm. Receiver will apply the same hash algorithm. That algorithm receiver, intruder, everybody is already aware of कि किस algorithm से hash बना है, MD5 से, SHA से. So वो algorithm same apply करेगा और H बनाएगा जो उसको रिसीव हुआ है मैसेज. अब मैसेज के साथ जब रिसीवर ने भेजा
सेंडर ने, तो मैसेज के साथ सिग्नेचर भेजा, तो मैसेज पे उसने हैश लगा के उसका डाइजेस्ट निकाला, एस को उसने डिक्रिप्ट किया। अब यहाँ पे डिक्रिप्ट किसके साथ करेगा, पब्लिक की ऑफ सेंडर, क्योंकि सेंडर ने अपनी प्राइवेट से इनक्रिप्ट किया था, सो इट विल बी डिक्रिप्टेड विद द पब्लिक की ऑफ सेंडर, इट विल गिव एच डैश लेट्स से, एंड जो हमने हैश लगाया है ओरिजिनल मैसेज पे जो हमें मिला है वो एच है, एंड विल कंपेयर बोथ हैश। अगर इफ दे आर सेम देन दैट मैसेज वो वी गॉट इज़ वैलिड एंड इज़ फ्रॉम द सेंडर, सेम सेंडर जो कि बोला गया है कि उस सेंडर से आया है, इज़ नॉट फ्रॉम एनी अदर थर्ड पार्टी। एंड अगर कंपैरिजन में कुछ चेंज आता है एच एंड एच डैश में तो वो इनवैलिड है, ठीक है। एंड देयर आर सम अदर पॉइंट्स, इट डज नॉट प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिलती है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन हिडन नहीं होती है सिग्नेचर्स में। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स नॉन रेपुटेशन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नोबडी कैन डिनाई ऑथेंटिकेशन कि या दिस इज पर्टिकुलर सेंडर, integrity means the message is not changed. So many services provided by digital signature. Now the elaboration of the same कि मैसेज ऑथेंटिकेशन अगर हम लगाते हैं, मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या है कि हमने हैश बना लिया एंड हैश को सेम की से इनक्रिप्ट कर दिया सेम साइड पे सेंडर और रिसीवर ने, तो वो लैक ऑफ ट्रस्ट को एड्रेस नहीं करता। लैक ऑफ ट्रस्ट मतलब अगर हम डाइजेस्ट को सेम की से सिमेट्रिक की से ही एनक्रिप्ट कर देंगे और वो सिमेट्रिक से ओपन करेगा, देन नोबडी आल्सो कैन चेंज दैट, बट इस केस में वो सेंडर और रिसीवर आपस में झूठ बोल सकते हैं, आपस में लॉयल नहीं हो सकते। सो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब है वो लैक ऑफ ट्रस्ट का जो इशू है कि हम अमेज़ॉन पे ट्रस्ट कर सकते हैं या अमेज़ॉन हम पे ट्रस्ट कर सकता है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ द थर्ड पार्टी है। सो यहाँ पे मेन इशू लैक ऑफ ट्रस्ट भी है, इंटीग्रिटी भी है, ऑथेंटिकेशन भी है। सो डिजिटल सिग्नेचर क्या प्रोवाइड करता है हमें कि हम वेरीफाई कर सकें ऑथर को, डेट को, टाइम ऑफ सिग्नेचर को, ऑथेंटिकेट मैसेज कंटेंट की मैसेज के कंटेंट सेम है, और वेरीफाई करें कि थर्ड पार्टी और बी वेरीफाइड बाय द थर्ड पार्टी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। इन केस कोई भी पार्टी अपने एक्ट को डिनाई करती है तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं थर्ड पार्टी सिग्नेचर्स को मैच करके। So this is another diagram of the same process. In this case, Bob is the sender and Alice is the receiver. So when Bob is creating the signature, in that case, Bob will take the message M and provide some signature algorithm. Now this is just an abstraction कि पूरी signature algorithm में वो अपनी private की use करेगा, इसमें इलाबोरेशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू कि कोई सिग्नेचर एल्गोरिथम पे अपनी प्राइवेट की यूज़ करके सिग्नेचर बना लेगा और सेंड क्या करेगा मैसेज को और सिग्नेचर्स को। रिसीवर साइड पर एलएस क्या करेगी, एलएस वेरिफिकेशन एल्गोरिथम लगाएगी दोनों चीज़ों पे, मैसेज पे और सिग्नेचर्स पे। किसको यूज़ करेगी, बॉब की, सेंडर की पब्लिक की यूज़ करेगी, रिटर्न करेगी सिग्नेचर वैलिड है या नहीं है। This is not the elaboration, this is the elaborated diagram. In this case, जो बॉब है मैसेज पे पहले हैश फंक्शन लगाएगा। हैश फंक्शन क्या है, मैसेज का एक स्मॉल फॉर्म क्रिएट करेगा कि अगर मैसेज में चेंज हो तो हैश बदल जाता है। बॉब की प्राइवेट की अपनी खुद की प्राइवेट की से उस हैश को जब इनक्रिप्ट करता है तो उस बॉब के सिग्नेचर्स बन जाते हैं। वो सिग्नेचर इस मैसेज के साथ एसोसिएटेड होते हैं एंड जो सेंड होगा चैनल पे मैसेज भी होगा और सिग्नेचर भी होंगे। इन दिस केस अगर आपको मैसेज को छुपाना भी है तो आप इस पर इनक्रिप्ट कर सकते हो बाद में दोबारा विद सम प्राइवेट की व्हाटएवर की, बट अभी अगर हम प्लेन मैसेज और एस भेज रहे हैं तो इन दिस केस मैसेज इज़ ओपन, एनीबडी कैन रीड। तो सिग्नेचर्स क्या हैं, सिग्नेचर्स आर देयर टू ऑथेंटिकेट कि हाँ बॉब का ही मैसेज है और यही कंटेंट बॉब के हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप मैसेजेस और ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज इन दिस केस एलिस क्या करेगा, रिसीवर साइड पर मैसेज एम है हमारे पास। नाउ एलिस बीइंग रिसीवर हेयर विल अप्लाई द हैश फंक्शन ऑन दैट मैसेज जो उसको मिला है। इट मे बी द सेम और इट मे बी चेंज बाय द इंट्रूडर। सो उसका एक हैश निकालेगा एलिस सेम हैश फंक्शन को अप्लाई करके। सेकेंड जो उसके पास है वो है सिग्नेचर, वो सेपरेटली सिग्नेचर्स को डिक्रिप्ट करेगा किसके साथ, यहाँ पे आएगी बॉब्स पब्लिक की, बिकॉज एलिस इज डूइंग दिस। सो बॉब्स पब्लिक की वो यूज़ करेगी एज डिक्रिप्शन जो कि सबको पता है, तो वो की के साथ इसको डिक्रिप्ट करेगी
हैश फंक्शन से अप्लाई करने के बाद जो एच आया है और जो डिक्रिप्शन के बाद एच डैश आया है, दे मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। अगर तो मैसेज चेंज हो गया है रास्ते में, उसके कंटेंट चेंज हो गए हैं, तो एच डिफरेंट मिलेगा इस टाइम, और अगर सेम है तो सेम मिलेगा। फिर वो कंपेयर करेगा रिसीवर, अगर तो सेम है तो रिटर्न करेगा सिग्नेचर्स आर वैलिड और उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज उस मैसेज को वो रिजेक्ट कर देगा बिकॉज द सिग्नेचर्स आर not valid. Also there are some more points to digital signature in this case. रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी कि डिजिटल सिग्नेचर की ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि मस्ट डिपेंड अपॉन द मैसेज साइंड। जौन सा मैसेज आपने साइन किया है उस पर डिपेंड होना चाहिए आपका सिग्नेचर। सेकेंड, मस्ट यूज़ द इंफॉर्मेशन यूनिक टू द सेंडर। ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ करे जो सिर्फ सेंडर को पता हो ताकि फॉर्जरी और डिनाइल ना हो पाए। एंड मस्ट बी ईजी टू प्रोड्यूस, ईजी होना चाहिए प्रोड्यूस करना। मस्ट बी रिलेटिवली ईजी टू रिकोगनाइज एंड वेरीफाई करना और रिकोगनाइज करना ईजी हो। ये ना हो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो तो सिग्नेचर से फिर ओवरहेड ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड, बी कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फॉर्ज। यहाँ पे मतलब है कि अगर एक मैसेज M1 है और एक M2 मैसेज है, किसी भी तरह अगर हम करें तो दोनों के सिग्नेचर सेम नहीं होने चाहिए या दोनों का हैश सेम नहीं होना चाहिए, सो दैट इंट्रूडर एक M1 का अगर कॉरिस्पॉन्डिंग M2 ले लेता है और उसका सिग्नेचर सेम आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर्ज नहीं होने चाहिए। एक मैसेज का एक यूनिक सिग्नेचर होना चाहिए, दूसरे का यूनिक। एंड नेक्स्ट इज बी प्रैक्टिकल टू सेव डिजिटल सिग्नेचर इन स्टोरेज। हमारे पास ये प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हम इसको सेव भी कर पाएँ स्टोरेज में, सो दैट जब डिस्प्यूट आए फ्यूचर में, so we can resolve that dispute with digital signature. So that is all about digital signature. If you have any doubt, please type in the comment section. Please download the notes there. Thank you for watching the video.